experiments today. So can you please tell me what are the shape functions for the quadratic variable, quadratic shape? Anyone, can you please tell me what are the shape function for quadratic shape function? Quadratic variable. For linear variable, it is 1 minus x by L and x by L. What are the shape functions n1, n2, n3 for quadratic? चलिए पहले लीनियर पे ही बात करते हैं ना। तो एक्सपेरिमेंट नंबर हम दोनों पे बात करेंगे, लीनियर पे भी बात करेंगे, क्वाड्रेटिक पे भी बात करेंगे, क्यूबिक पे भी बात करेंगे। ठीक है, वी विल find the shape or we will plot the shape function and verify their properties today. So first for linear, n1 is 1 minus x over L, n2 is x over L. ठीक है, suppose I want to plot this function, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? It is linear, तो the plot will be, suppose there is a bar, let this is a bar, x equal to 0 here, x equal to L here, or let L here, let the length of the bar is 5 meter, length is 5 meter. So if I take the scale over here, let this is 1, then n1 will be 1 at x equal to 0 and n1 will be 0 at x equal to 5. So I will get 2 points, one first point, second point, and it is changing linearly. So I will draw a line. तो कुछ मुझे ऐसा ग्राफ मिलना चाहिए n1 equal to 1 minus x by L का। ठीक है, for n2 the value at x equal to L will be 1 and x equal to 0 will be 0. So first graph for n1, second graph for n2. Let me change the color for the clarity. So I will get like this. Yeah? This value is 1. So the green color graph is for n2. If I work the same for the quadratic, then I am having 3 shape functions n1, n2, and n3. So n1 means x equal to 0, n2 means x equal to 5 meter, and x3 means x equal to 2.5 meter. So n1 will be 1 at x equal to 0. So this is let 1. So this is the first point for n1. And other nodes it will be 0. So it will be 0 here. It should be 0 here also. At the other nodes its value will be 0. So your graph will be somewhat like this. Graph will be somewhat like this. For n2, n2 is x equal to 5, n2 is at x equal to 5, n1 is x equal to 0, n3 means x equal to 2.5, at x equal to 2.5. So for n2, what will be the shape of the graph? Anyone? The shape of the graph for the n2 will be, it is 1 at x equal to 5, so first point. Other point is it will be 0. So from these 3 points there will be a graph. So this is the graph for n2. This is the graph for n1. This is node number 1. This is node number 3. This is node number 3. So n1 we have plotted in green color. N2 we have plotted in red color. Here this is n1 is in red color for the linear, n2 for the in green color, n2. So n1 and n2. This is n1. This is n2.
This is node number 1, this is node number 2. So here now the third shape function n3, which is at middle, so its value at middle will be 1. It is 1 over here and it will be 0 at other places. So let me change the color again. Blue color. So the graph will be, this is 1 here, at other places it will be 0. So from these three you can draw a graph like this. So this type of shape will be observed. वैसा एक्सपेक्टेड है कि ऐसा शेप मिलना चाहिए n1 n2 n3 के लिए, ठीक है। अब इसको जरा सा हम वेरीफाई करते हैं। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इस तरह का शेप मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? यस सर, लीनियर में हमको लाइंस मिलनी चाहिए, स्ट्रेट लाइंस, और क्वाड्रेटिक शेप फंक्शन में जो शेप है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, है ना। और वो शेप फंक्शन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना चाहिए। The property of the shape function is n1 plus n2 plus n3 must be 1. For the linear category, both the shape functions n1 plus n2 must be 1. तो इस प्रॉपर्टी को भी आज हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई करेंगे कि यहाँ पे हमको n1 plus n2 इक्वल टू 1 मिलना चाहिए, और हर पॉइंट पे 1 मिलना चाहिए, नॉट ओनली 1 at this node, it should be at each and every point. Each and every point throughout its length, the summation will be 1. So what we will take, we will divide this whole length into small parts. At every small part we will calculate n1 n2 and n3 as the case may be. Then we will summarize all those and we will check that the summation is coming 1 or not, and we will also observe the variation of shape functions from node 1 to from starting node to end node. What is the variation in shape functions? So current version आप लोगों ने लोड किया है क्या? जरा बताइए। स्टूडेंट वर्जन ऑफ MATLAB is available free in Google Play Store. कितने पार्टिसिपेंट है मेरे साथ इस वक्त? 9। अंकुर चौहान सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, गूगल प्ले स्टोर में है, इस MATLAB वर्जन है, ठीक है, स्टूडेंट वर्जन। तो वो आप अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिए। यस सर। सारी जितने भी करीब 7-8 प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, आज हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पहला, तो वो सब आपके इसमें वर्जन में, इस वर्जन में कोडिंग होके एग्जीक्यूट हो जाएंगे, है ना। आज मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा आपको, कोडिंग करके भी दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा, फिर बाकी आपको भी करना है अपने आप से। तो इसको जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये स्टूडेंट वर्जन की लिमिटेड स्कोप होता है, मतलब इसमें सारा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब सिमुलिंक वगैरह के फंक्शन काम नहीं करते, लेकिन सॉरी सर, सिमुलिंक के अलावा हमारे पर्पस के जितने भी हम जो 7-8 एक्सपेरिमेंट करेंगे वो इसमें बखूबी अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं बताऊं लीनियर की ना, 1 बाय 1। सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव लिखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव प्लॉट and verify the properties if functions in global coordinate system, to plot and verify the properties of the shape functions in global coordinate system for linear, quadratic and cubic elements.
ठीक है, और लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक एलिमेंट्स। तो देखो मैटलैब में आपको थोड़ा सा तो आइडिया है ही है, आज मैं करके दिखाऊंगा कोडिंग आपको। क्लियर ऑल सीएलसी हमें लिखना ही है, ठीक है। ग्लोबल कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है वही है ना, एक तो नेचुरल कोऑर्डिनेट है और एक ग्लोबल कोऑर्डिनेट। तो यदि मैं लीनियर की बात करूं, n1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एल, n2 इक्वल टू एक्स बाई एल, ये ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है? ग्लोबल। और यदि मैं नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, देन इट इज 1 माइनस जीटा बाई 2 एंड n2 इज 1 प्लस जीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम है? नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस सिस्टम में जीटा वेरीज फ्रॉम -1 टू +1, और ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में x वेरीज फ्रॉम 0 टू l, x वेरीज फ्रॉम 0 टू l, है ना। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में फर्स्ट नोड इज x इक्वल टू 0, सेकंड नोड इज x इक्वल टू l। l को हम अपने एग्जांपल में 5 ले ले रहे हैं, ठीक है, 5 मीटर, कुछ भी ले लेना आप, 10 मीटर भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम 5 मीटर ले ले रहे हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0, दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 2। इन जीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is the first node, this is the second node, here zeta equal to -1, here zeta equal to +1, ठीक है, इन नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल कोऑर्डिनेट का, है नेचुरल पे भी करेंगे हम, वो सेकंड केस में जाएंगे, पहले ग्लोबल पे करेंगे। तो ग्लोबल में ये हमारे पास दो सेम फंक्शन है, n1 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई एल, n2 इक्वल टू प्लस एक्स बाई एल, है ना। तो हम क्या करें इसमें, सबसे पहले तो हम लेंथ को डिफाइन कर दें, है ना। लेट द लेंथ इज 5 मीटर, पुट ए सेमीकोलन ओवर हियर, सो l इक्वल टू 5 हमने डिफाइन किया। उसके बाद x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू l, है ना, x इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू l। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू चेंजिंग फ्रॉम 0 टू l, और हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 0 टू l को। तो ये जो स्पॉन है, एक सिंगल स्पॉन है, इसको हम छोटा सा ले लेंगे, 0.01 ले सकते हैं या 1 भी ले सकते हैं, तो आपके ऊपर है, जो भी छोटा आप स्पॉन ले हैं, हमने इसको 0.1 ले लिया, ठीक है। और ये कहां तक मूव कर रहा है? l तक मूव कर रहा है, और l की वैल्यू कितनी है? 5। तो x को हम 0 टू 5 को हमने 0.1 के स्पॉन से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, है ना। तो काफी सारे स्टेप्स बन जाएंगे, काफी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। यदि 0.01 करेंगे तो और 10 गुना बढ़ जाएंगे, है ना। तो जितने भी पॉइंट्स में डिवाइड करना चाहें, सफिशिएंट पॉइंट हमने ले लिए, x इक्वल टू 0 टू 0.1 टू l। देन आई विल राइट n1 इक्वल टू 1 माइनस x, ठीक है, x ये पूरा एरे है, मतलब मैट्रिक्स है, वेक्टर है, डिवाइडेड बाय l, ठीक है। पुट ए सेमीकोलन ओवर हियर, हर लाइन पे हम सेमीकोलन लगा रहे हैं क्योंकि हमें आउटपुट अभी कुछ नहीं चाहिए। देन वी आर राइटिंग n2 इक्वल टू x ओवर l। उसके बाद हम लिख रहे हैं प्लॉट बिटवीन x एंड n1, ठीक है। मैं ऐसा प्लॉट चाह रहा हूं कि एक तरफ तो x एक्सिस है और दूसरी तरफ सेव फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो x एक्सिस इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू 5, और सेव फंक्शन अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, उसके ढेर सारे पॉइंट्स हो जाएंगे हर वैल्यू पर, है ना, हर इस पॉइंट पर सेव फंक्शन विल बी कैलकुलेटेड एंड इट विल बी प्लॉटेड। सो प्लॉट x n1, और इसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या आएगा? ब्लू। मैटलैब में यदि हम कलर स्पेसिफाई ना करें तो उस प्लॉट का कलर क्या आता है? ब्लू कलर में ये प्रिंट हो जाएगा। तो प्लॉट x n1, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेव फंक्शन है n2, उसको भी प्लॉट करना है। तो मैटलैब में क्या होता है, जब हम दूसरे सेव फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो पहला गायब हो जाता है, ठीक है। पहला प्लॉट करते हैं, फिर दूसरा प्लॉट करते हैं तो पहला गायब हो जाता है, फिर तीसरा प्लॉट करते हैं तो दूसरा गायब हो जाता है, चौथा करते हैं तो तीसरा गायब हो जाता है, लाइक दैट। मतलब पुराने वाले गायब हो जाते हैं, तो उनको हम गायब ना हो तो उसके लिए कमांड होती है होल्ड ऑन। तो होल्ड ऑन का मतलब है पहले वाला प्लॉट एज इट इज एग्जिस्ट करेगा और दूसरा प्लॉट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, प्लॉट x n2, ठीक है। अब ये भी प्लॉट हो जाएगा, ये भी प्लॉट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमको प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है कि हर पॉइंट पर n1 प्लस n2 की वैल्यू 1 के बराबर है या नहीं,
तो हम लिखेंगे n1 प्लस n2, ठीक है। टोटल हम लिख सकते हैं टोटल t इक्वल टू n1 प्लस n2। तो t की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। So this is the sufficient coding to execute the linear element save function in global coordinate system, ठीक है। तो अब मैं पूरे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई विल टाइप दिस इन मैटलैब, ठीक है। आई विल टाइप दिस इन मैटलैब and then run the program, then I will check the properties and the variation, ठीक है। तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मुझे हर लाइन बताते जाइएगा मुझे क्या क्या टाइप करना है, ठीक है। ओके सर। Just stop sharing and I am sharing the MATLAB window. Yes, the MATLAB is visible to you. MATLAB window is visible. हाँ जी, Yes. MATLAB window is visible है ना? यस सर, विजुअल है। गुड गुड। अब इस विंडो में हम, आपको पता ही है, देखो इधर फोल्डर विंडो होता है, इधर एडिटर विंडो है, इधर वर्क स्पेस है, इधर कमांड हिस्ट्री है, इधर कमांड विंडो है ना। तो हम अनटाइटल्ड मतलब एडिटर में काम कर रहे हैं ना। एडिटर के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम। उससे पहले हम लिखेंगे क्लियर ऑल, उसके बाद हम लिखेंगे CLC। क्लियर ऑल का मतलब है पुराने सारे वेरिएबल खत्म हो जाएं। CLC का मतलब है कमांड विंडो क्लियर, लिखना ही लिखना है। इसके बाद हमारी जो अगली लाइन है वो क्या है, हमने L को डिफाइन किया। जरा बता देना मैं कुछ कहीं पे गलत करूँ तो। लेंथ को डिफाइन किया L इक्वल टू 5, फिर हमने एक x वेक्टर बनाया और उस वेक्टर को हमने 0 से लेके 0.1 के स्पान से कहां तक इंक्रीज किया, L तक। L मतलब 5 तक। ये हमने x वेक्टर बना दिया। इसके बाद हमने क्या किया, n1 इक्वल टू 1 माइनस x ओवर L, सेमीकोलन लगा दिया। फिर हमने n2 इक्वल टू x ओवर L, ठीक है। x भी मालूम है, L भी मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, सेमीकोलन लगाते रहिए। इसके बाद हमने क्या किया, प्लॉट x, n1, ठीक है, n1। उसके बाद हमने क्या किया था, होल्ड ऑन। इसके बाद हमने किया प्लॉट x, n2, ठीक है, दोनों प्लॉट हो गए। इसके बाद प्रॉपर्टी वेरीफाई करी, t इक्वल टू n1 प्लस n2। देखिए चेक कर लीजिए, कोडिंग जो मैंने पीपीटी में लिखी थी वो वही है। इज इट सेम? यस सर, सेम है सर। टिकट सेम है ना, ओके। तो अब इसको हम रन करते हैं। रन करने पर यदि कोई एरर होगी तो हमको ये एरर बता देगा और एरर को दूर कर लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एरर नहीं होगी तो ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो रन करने के लिए रन कमांड है, शॉर्टकट F5 भी होती है। ये रन कमांड से हमने रन किया। रन करने से पहले ही हमसे कह रहा है कि सेव करिए फाइल को। फाइल को क्या करिए, सेव करिए। तो ये आज का हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, तो ये मैंने FIRST से सेव कर दिया, फर्स्ट, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट, तो प्रोग्राम का नाम क्या हो गया, फर्स्ट। अब जैसे ही फर्स्ट से सेव किया, रेड कलर में देखो एरर आ गई है, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल n2 जो है वो अनडिफाइंड है, इसका ये कहना है। एरर इन फर्स्ट तो फाइल का नाम है, और लाइन नंबर 6, है, तो n2 के बाद देखो माइनस हो गया है, इक्वल रह गया सर। यस सर। तो ये n2 के बाद हमें माइनस हटा के क्या करना पड़ेगा, इक्वल, ठीक है, इक्वल कर दिया। अब इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं। ये देखिए अब कोई एरर नहीं है, और देखो ये प्लॉटिंग आ गई है, और दोनों प्लॉटिंग ब्लू कलर में आई है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने कलर स्पेसिफाई नहीं किया था। तो यदि हम कलर स्पेसिफाई कर दें दूसरे वाले प्लॉट को, मान लो कि हम रेड कलर में चाहें, तो कॉमा लगा के कॉमा के अंदर आपको R लिखना पड़ेगा, R फॉर रेड, ठीक है। तो अब दूसरा वाला जो प्लॉट है वो रेड कलर में आ जाएगा, ठीक है। रन करते हैं तो देखिए एक ब्लू कलर में है और एक रेड कलर में। तो अब आप एक्सिस देखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ये बार की लेंथ को डिवाइड किया गया है, 0 से लेके 5,
है ना, 0.5 मीटर। सर ये प्लॉट नहीं दिख रहा। सर प्लॉट कहाँ पर है सर, नहीं दिख रहा। प्लॉट नहीं दिख रहा, ओके ओके, मैं अभी इसको शेयर करता हूँ। एक्चुअली ये अलग विंडो हो गई है ना, इसलिए ब्लैक ब्लैक आ रहा होगा आपके भी, है ना। सर कुछ आ ही नहीं रहा है सर। अच्छा, कुछ आ ही नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इस फिगर को ना पहले शेयर करता हूँ, जस्ट वेट, ओके सर। जस्ट शेयरिंग इट। अब बताइए क्या आप दिख रहा है? ये सर अब दिख रहा है। हाँ, तो देखो पहले ये दोनों ब्लू कलर में आए थे, बाद में मैंने जब आर कर दिया ना तो अब रेड कलर में हो गया। तो N1 मतलब ब्लू कलर। तो अब इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी बार में ये पहला नोड x इक्वल टू 0 पे है और लास्ट नोड x इक्वल टू 5 पे है, ठीक है। अब N1 की वैल्यू अपने नोड पे 1 है और बाकी अदर नोडों पे 0 है और ये लीनियरली रिड्यूस होता गया। तो यहाँ पे देखो हमें लीनियर ग्राफ मिल रहा है और N2 में भी लीनियर मिल रहा है, लेकिन N2 में नोड नंबर 2 पे उसकी वैल्यू 1 है और नोड नंबर 1 पे उसकी वैल्यू 0। तो ये हमारा इस तरह से ग्राफ आ गया। अब इस विंडो को मैं क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अब आपको मैटलैब विंडो, अच्छा क्लोज करने से सारे क्लोज हो गए, कोई बात नहीं। अब बताइए मैटलैब विंडो दिख रही है आपको? यस सर दिख रही है। हाँ, तो अब इस मैटलैब विंडो की जो कमांड विंडो पे कोडिंग आउटपुट आया है ना, उसको चेक करते हैं। ये पूरा चेक करते हैं। तो इसमें देखो टी मतलब टोटल, ठीक है। तो टोटल की वैल्यू 1 आ रही है, देखो पहले नोड पे 1, उसके बाद जो अगला पॉइंट है x इक्वल टू 0.1 उस पर भी 1, x इक्वल टू 0.2, 0.3 ऐसे करके पॉइंट डिवाइड हो गए। तो हर पॉइंट पर जो टोटल है वो 1 1 आ रहा है। सेम फंक्शन का टोटल क्या आ रहा है? 1। टोटल कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? 51 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। 0 से लेके 5 को 0.1 के स्पान से हमने डिवाइड किया तो 51 पॉइंट्स हो गए और हर पॉइंट पर सेव फंक्शन का टोटल, दोनों सेव फंक्शन का टोटल 1 है। सो इट इज वेरीफाइड। ये कोडिंग क्लियर है? फिर मैं क्वाड्रेटिक पे चल रहा हूँ आगे। इज इट क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है। अब हम जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पे। तो क्वाड्रेटिक में अब आप ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, इस फाइल को कॉपी करेंगे। इस प्रोग्राम को मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी। ये कोडिंग मैंने पूरी कॉपी कर ली और इसी में मैं एडिटिंग कर दूंगा, ठीक है। अब मैं एक नई फाइल बना ले रहा हूँ, न्यू फाइल। न्यू पे क्लिक करने से नई फाइल बनेगी और इस फाइल के अंदर मैंने ये कोडिंग पेस्ट कर दी, ठीक है। लेंथ हम 5 मीटर ही रखेंगे, स्पान हम 0.1 से लेके L तक यही रखेंगे। N1 की डेफिनेशन चेंज हो गई। N1 की डेफिनेशन माइनस एक्स बाई एल ना होकर क्वाड्रेटिक के लिए क्या होती है जरा बताओ, तो याद हो तो। एनीवन? 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होती है, क्या होती है? 1 माइनस 3x बाई एल प्लस 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। चेक करो, कॉपियां पलटो अपनी। वन माइनस 3x बाई एल प्लस 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर होती है, यस सर। ठीक है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन को चेंज कर रहा हूं। देखो 1 माइनस 3, यहाँ पे 3 बढ़ा दूंगा, 3 के बाद मुझे स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है, 3x बाई एल। उसके बाद मुझे क्या बढ़ाना है? 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो मैंने कर दिया प्लस 2 x स्क्वायर। तो मैंने क्या करना पड़ेगा? x पावर 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर एल पावर 2, ठीक है। 1 माइनस 3x बाई एल प्लस 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ठीक है। ये N1 की डेफिनेशन हो गई। लेकिन अब इस N1 की डेफिनेशन में जरा सा चेक करो, x के अंदर कितनी वैल्यूज है बताओ, जवाब देते रहो। x के अंदर कितनी वैल्यूज है टोटल? 0 से लेके 5 के बीच 0.1 के गैप से टोटल वैल्यूज कितनी हुई? कितने पॉइंट्स मिले हमको टोटल? है ना, 51 पॉइंट्स मिले थे। 51 मिले थे सर, 51। हाँ, तो 51 पॉइंट्स है, ठीक है। उन 51 पॉइंट्स में 3 से गुणा होगा और हाँ। L से डिवाइड होगा, 3x बाई एल।
तो यहाँ पर भी आपको 51 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। 1 माइनस 3x/l, तो इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब आगे वाले में देखो 2x², ये x² पे ध्यान दो। x के अंदर कितने पॉइंट हैं बताओ? 51, 51 पॉइंट्स हैं। अब हमें उन 51 पॉइंट्स का स्क्वायर कराना है। हमें क्या कराना है? उन 51 पॉइंट्स का स्क्वायर कराना है। और x² का मतलब तो x इंटू एक्स होता है। x हमारा साइज क्या है? x का साइज क्या है? 1 इंटू 51। दूसरे x का साइज 1 इंटू 51। 1 इंटू 51, 1 इंटू 51 मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, तो आपकी यहाँ पे एरर आएगी। x² करने में मैटलैब एरर देगा, ठीक है। देखो एक बार चला के दिखाते हैं एरर देता है कि नहीं देता है। लेट्स चेक। पहले सेव कर देते हैं। ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है, तो इसको हम सेकंड के नाम से सेव कर रहे हैं। देखो एरर आ गई। क्या कह रहा है? इनपुट मस्ट बी ए स्केलर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है उसको। यहाँ पे एरर आ रही है लाइन नंबर 5 में। देखो इसमें लिखा भी होगा लाइन नंबर 5। और देखो ये इस लाइन में एरर आ रही है। तो ये इसका ये कहना है कि x² हो नहीं पा रहा है। x² परिभाषित नहीं है, x² डिफाइंड नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि x का साइज क्या है? 1 इंटू 51, और दूसरे x का साइज क्या है? वो भी 1 इंटू 51। तो x इंटू एक्स कैसे होगा? x इंटू एक्स होने के लिए पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। यही तो रूल होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है, x² नहीं हो पा रहा है, और हमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना भी नहीं है। हमें क्या करना है? उन 51 वैल्यूज के स्क्वायर करने हैं केवल, है ना। तो यहाँ पे हमको एलिमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। सो दैट एलिमेंट ऑपरेटर इज डॉट ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक डॉट लगा दिया मैंने, x डॉट पावर 2। Yes, am I audible? Yes, sir. तो मैं कहाँ तक पहुंचा था ये बताएं जरा। मैटलैब में थे ना हम? मैटलैब विंडो दिस वन। यस, विजुअल। मैटलैब विंडो इज विजुअल? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो हम यस सर। ये डॉट वाली बात मैं समझा रहा था जब तक मेरी आवाज आ रही थी आपको। ये डॉट ऑपरेटर बताया था मैंने, x² ना लिख के मुझे x डॉट पावर 2 लिखना होगा। ये क्लियर है? यस सर, ऐसा यही तक बताया था। हाँ, कि ये डॉट क्यों लिखा है, ठीक है।
तो n1 में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब यहाँ पे डॉट x लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई हो नहीं रहा। जहां जहां एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, x4 आएगा, वहां पर हमको डॉट पावर लगाना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि सर नीचे भी तो एल स्क्वायर है, तो आपने यहाँ पे एल डॉट पावर 2 क्यों नहीं किया, है ना। तो इसका आंसर ये है कि एल की वैल्यू 5 है, उसमें केवल एक ही वैल्यू है ना। एक वैल्यू का मतलब ये स्केलर वैल्यू है, और स्केलर वैल्यू का डायरेक्ट स्क्वायर हो जाता है 5 स्क्वायर 25। ठीक है। मैट्रिक्स के स्क्वायर में प्रॉब्लम आती है यदि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ द कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा शेप फंक्शन की डेफिनेशन बताओ क्या है, फॉर्मूला है किसी के पास? मेरे पास है माइनस एक्स बाई एल, चेक कर लेना अपनी कॉपी में, प्लस 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, है ना। तो ये प्लस वाला मैं यहां से पूरा उठा लेता हूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स बाई एल प्लस 2x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ये हो गया n2। और n2 के बाद अब ये हमें n3 और है, क्वाड्रेटिक है ये। तो n3 में 4x बाई एल माइनस 4x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। कर लेते हैं n2 वाली लाइन को और उसी में एडिटिंग कर देंगे। ये n2 की जगह हमने कर दिया n3, और इसका फॉर्मूला है 4x बाई एल। तो ये माइनस हटा के 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 के बाद इंटू भी आएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4 इंटू एक्स बाई एल माइनस 4x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, तो ये प्लस की जगह माइनस, ठीक है, और 2 की जगह 4 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये फॉर्मूले हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्वाड्रेटिक एलिमेंट के। अब हमें प्लॉट करना है, प्लॉट एक्स n1 तो ये ब्लू कलर में प्रिंट हो जाएगा, प्लॉट एक्स n2 रेड कलर में प्रिंट हो जाएगा। अब हमें n3 को भी प्लॉट कराना है, तो हम इसको कॉपी करके एक लाइन और बढ़ा देंगे, प्लॉट एक्स n3, प्लॉट एक्स n3, और इसको कौन से कलर में ले लेंगे हम, किसी और कलर में ले लेंगे। मान लीजिए हमने इसको सियान कलर में ले लिया या मैजेंटा कलर में ले लिया m, तो एक्स n3 m, ठीक है। और t बराबर टोटल में क्या हो जाएगा, तीनों का टोटल प्लस वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। हर पॉइंट पर, पूरे 51 पॉइंटों पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। चलिए इसे रन करके देखते हैं। वाह, अच्छा फिगर तो आपको दिख नहीं रहा होगा, फिगर दिख रहा है क्या? मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि आपको तो मुझे शेयर करना पड़ेगा। तो नहीं दिख रहा सर। हाँ, फिगर मैं दिखाता हूँ आपको, स्टॉप शेयर करके दोबारा उसको शेयर कर देता हूँ फिगर को। शेयर स्क्रीन, फिगर 1 शेयर। अब बताओ दिखा? Yes, sir. हाँ, ये सर दिख रहा है। तो अब देखो मेजेंटा कलर मतलब कौन सा वाला शेप फंक्शन है, ये n3, n3 है, n3, ब्लू कलर n1 n1 और रेड कलर n2। n2। तो अब देखो n1 की वैल्यू अपने नोट पे 1 और बाकी नोटों पे 0, है ना। 0 की लाइन देखो ये है ना। और देखो 0 से नीचे भी गए हैं, ये वाला फंक्शन 0 से नीचे भी गया है, मतलब जो रेड कलर n2 वाला है वो नेगेटिव भी हो रहा है, उसकी कुछ वैल्यू, ब्लू कलर वाले की भी कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। देखो 0 से नीचे चला गया, मतलब शेप फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है ना, नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये इस तरह से ब्लू कलर इज फॉर n1। तो ये ग्राफ आपको, और नीचे 0 से 5 को कितने पॉइंट में डिवाइड किया हमने, 51 पॉइंट्स में डिवाइड किया। तो अब मैं इसको स्टॉप से करके जरा वो टोटल भी दिखा देता हूं। तो देखिएगा नीचे, ये देखिए टोटल की वैल्यू सारे 51 पॉइंट पे 1 1 आ रही है ना, दिख रही है आपको मैट्रिक्स में? थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, दिख रही है? t इक्वल टू 1 से 12, 13 से 24, 25 से 36 और 51 तक पूरा 1 1 1 आ रहा है। हर पॉइंट पर इसका टोटल 1 है। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने क्वाड्रेटिक को भी कर लिया, ठीक है। अब इसका टाइम हो गया है नेक्स्ट, ठीक है। और उसमें हम जो है अब इसमें क्यूबिक वाला आप अपने आप कर लेना, इसी फाइल को कॉपी करना, एडिटिंग कर लेना, प्लॉट कर देना। 4 फंक्शन प्लॉट होंगे, n1 n2 n3 n4 क्यूबिक में, ठीक है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ?
लीनियर मैंने करके बता दिया, क्वाड्रेटिक करके बता दिया, क्यूबिक आपको स्वयं करना है। यस सर कर लें। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल खत्म होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक फंक्शन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब अभी हम दूसरा या करेंगे और उसमें हम नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टॉप शेयर करते हैं। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी विल अगेन ज्वाइन आफ्टर 10 मिनट्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर